So students, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start the chapter The Damaged Canoe. So first we will read about the lesson. Stuart Little was not an ordinary mouse. He lived in New York with his parents, his older brother, George, and the cat. He was traveling on business of a confidential nature. He wrote a letter to Miss Harriet and invited her to go for a paddle with him in his canoe. Read and enjoy what happened at the foot of Tracy Lane. So, let's start the chapter. When Stuart arrived at his campsite by the river, he was tired and hot. He put the canoe in the water and was sorry to see that it leaked badly. The birch bark at the stern was held together by lacing, and the water came in through the stem. In a very few seconds, the canoe was half full of water. तो ये स्टोरी है स्टार्ट. जो स्टुअर्ट नाम का जो है क्या है वो एक माउस है. वो जब कैंप के बाहर साइड में रिवर के साइड में आता है तो वो क्या महसूस कर रहा है, काफ़ी टायर्ड और हॉट. तो क्या करता है, वो एक कैनोए अपनी एक, जैसे आप देख रहे हैं ना पिक्चर के अंदर, एक जो शिप, एक जो है ना बोट के आकार की जो है, तो उसको वाटर के अंदर लेके जाता है और उसके अंदर बैठ जाता है. लेकिन वो कैसे लीक कर रही है बहुत बैडली, और जो उसके जो जिस चीज़ से वो बनी हुई है वो भी कैसे हो गई है, काफ़ी लैंसिंग हो गई है. और धीरे धीरे जो वाटर उसके अंदर आता जा रहा है, लगता है फ्यू सेकंड के अंदर ही जो कैनोए है वो हाफ फुल ऑफ वाटर हो जाएगी. Damn it, said Stuart. I have been swindled. It had paid 26 cents for a genuine Indian birchbark canoe, only to find that it leaked. तो ये क्या बोलता है, damn it. अब said Stuart. Stuart कहता है कि क्या हो गया ये, जैसे उसको दिखता है कि जो full of है ना, जो वाटर है वो धीरे धीरे उसमें फिल होता जा रहा है. तो कहता है क्या मैंने सिर्फ 26 सेंट्स जो जेन्युइन दिए हैं वो किस लिए दिए हैं, इंडियन बर्च वर्क के इस चीज़ के लिए ताकि ये लीक हो. डैम डान डान ही मटर्ड. अब वो क्या बोलता है कि ऐसे गुनगुनाता है और ऐसे फुसफुसाता हुआ बार बार उसको क्या कर रहा है, बार बार उस चीज़ को बोले जा रहा है. Then he bailed out his canoe and hauled it up on the beach for repairs. He knew he couldn't take Harriet out in leaky boat. She wouldn't like it. Tired though he was, he climbed a spruce tree and found some spruce gum. With this, he plugged the seam and stopped the leak. Even so, the canoe turned out to be a cranky little craft. Stuart had not plenty of experience on the water. He would got into serious trouble with it. क्या देख रहा है कि वो वहाँ पर आ तो गया है कैनोए में, लेकिन साथ में वो क्या देख रहा है कि हॉल्ड इट अप, और जो पूरा का पूरा उसको रिपेयर करना पड़ेगा, बीच फॉर रिपेयर. लेकिन उसको पता नहीं है, और कुडंट टेक हैरियत आउट इन द लीकी बोट, कि किस तरह से जो लीकी बोट है उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं. टायर्ड थ्रू ही वॉज एंड क्लाइम्ड अ स्पॉट ट्री. अब वो कहाँ पर चढ़ गया है, स्पॉट ट्री पर चढ़ रहा है और देख रहा है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर क्या है कि कोई गम मिल जाए उसको ताकि वो उसको पेस्ट कर पाए. लेकिन वहाँ पर उसको कोई सीम पर स्टॉप द लीक, और ना कोई सीम नज़र आ रही है जिस चीज़ को वो क्या कर पाए, दोबारा से स्टिच कर पाए. लेकिन इवन सो द कैनोए टर्न्ड आउट टू बी अ क्रंकी लिटिल क्राफ्ट. और उसको कहीं पर भी कुछ चीज़ ऐसी नहीं दिख रही कि जो प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस हो वाटर का, क्योंकि उसको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था इस बेस पर, इसलिए वो एक सीरियस ट्रबल के बेस पर उन चीज़ों को फेस कर रहा था. इट वॉज द टिपी बोट, इवन अ स्विनियर. Stuart carried stones from the beach down to the water's edge and ballasted the canoe with the stones until it floated evenly and steadily. He made a back rest so the Harriet would be able to lean back and trail her fingers in the water if she wished. He also made a pillow by tying one by one clean handkerchief around some moss. Then he went for a paddle to practice his stroke. He was angry that he didn't have anything better than an ice cream spoon for paddle, but he decided that there was nothing he couldn't do about it. He wondered whether Harriet would notice that his paddle was really just an ice cream spoon. तो देखता है कि किस तरह से उस बोट की जो कंडीशन है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो
जो स्टुअर्ट है वो क्या करता है, कैरिड करता है, अलग अलग स्टोन्स लेके आता है, बीच से स्टोन उठाता है और वाटर एजिस पर, जो किनारे पर पड़े होते हैं वहाँ से वाटर एजिस से स्टोन्स को उठाता है, उसको बास्टिट कर देता है और फिर बॉलेस्ट करके कैनोए के इधर उधर लगा देता है। लेकिन स्टोन के साथ ही वो कैसे करती है, फ्लॉट करती है इवनली और जल्दी से उसमें स्टेडली वो चलने भी लग जाती है। ही मेड अ बैक रेस्ट सो दैट हैरियत वुड बी एबल टू लीन बैक। लेकिन वो देखता है कि किस तरह से जो फिंगर्स है उसकी वाटर के अंदर विस्प हो गई हैं, पूरी गीली हो चुकी हैं और वो उसको क्या कर रहा है, उनको हैंडकरचीफ से साफ करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से वो अलग अलग स्ट्रोक्स जो होते हैं, स्ट्रोक, उनको भी कलेक्ट करता है और पैडल के लिए सोचता है कि पैडल के लिए अब उसको क्या करना चाहिए। तो वो पैडल के लिए सोचता है कि आइसक्रीम स्पून जो है वो पैडल के लिए सबसे बेस्ट होंगी और वो डिसाइड करता है कि उनसे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होता। और ही वंडर्ड वेदर, जब वो देखता है कि जो हैरियत है वो क्या देखता है कि नोटिस करता है कि जो पैडल है वो रियली जस्ट एन आइसक्रीम स्पून, कि वो आइसक्रीम स्पून से ही बहुत बेस्ट बन सकते हैं। All that afternoon Stuart worked on the canoe, adjusting ballast, filling steam, seams and getting everything ship shape for tomorrow. He could think of nothing else but his date with Harriet. At supper time he took his axe and felled the dandelion, opened a can of delived ham. अब यहाँ पे क्या देख रहा है वो जो माउस है छोटा सा, वो देख रहा है कि आफ्टरनून में जो स्टुअर्ट है वो काम करना शुरू कर देता है, किस पर, अपनी कैनोए पर, और एडजस्ट करता है वहाँ पे बॉलास्ट को, फीलिंग सीम्स करता है, जो सीम्स हैं उसकी उसको फील करने लग जाता है और हर जगह से जो गेटिंग किया था उसने एवरीथिंग वो शिप शेप के लिए, ताकि वो कल जा पाए। और वो ये सोचने लग गया है कि शायद उसके लिए नथिंग एल्स, अब कुछ नहीं बचा है हैरियत के साथ डेट पर जाने के लिए। मतलब कैसे कैसे वो सब चीज़ों को कलेक्ट करके और वहाँ पर जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ मैनेज करने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एट सुपर टाइम ही टुक हिज एक्स, अब सुपर टाइम आ गया और उसने क्या लिया है, एक एक्स को ले लिया है। एक्स क्या होता है, एक हथौड़ी टाइप में उसने ले लिया है, एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया है जिसके अंदर ओपन अ कैन ऑफ डिवाइल्ड ham and had a light supper of ham and dandelion milk. After supper he propped himself and against a fern, bit off some spruce gum of a chew and lay there on the bank dreaming and chewing gum. In this imagination he went over every details tomorrow's trip and with Harriet. With his eyes shut he seemed to see the whole occasion plenty, how he would look when she came down the path of the water, how calm and peaceful the river was going to be in the twilight, how graceful the canoe would seem drawn up to shore. The imagination he lived every minute of their evening टुगेदर। अब ये क्या देख रहा है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन में है अभी इसके, कि किस तरह से वो सपर लाइट जो है उसको देखता है और लाइट को देखते हुए किस तरह से उस चीज़ को कहता है कि च्युइंगम के साथ अगर उसको गम नहीं मिल रही तो गम के साथ वो क्या देखता है कि चू के लिए अगर उसको गम के साथ उसको पेस्ट कर दिया जाए तो वो और ज़्यादा ड्रीमिंग हो जाएगा। उसकी इमेजिनेशन इस तरह से काम करती है कि जो टुमारो जो उसका ट्रिप होगा, किसके साथ, हैरियत के साथ उसका जो ट्रिप होगा वो किस तरह से होने वाला है। उसकी आइज़ जो है वो शट हो जाती है और सोचने लग जाती हैं कि जो ओकेजन होगा, पूरा ओकेजन होगा वो प्लेंटी होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है पाथ टू द वाटर, कि अगर हम पानी के साथ ही किस तरह का एंजॉय करें, लेकिन वो बड़ा काम होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए रिवर के साथ साथ। और रिवर भी कैसी होनी चाहिए, पीसफुल और ग्रेसफुल होनी चाहिए, ताकि मैं उसके साथ साथ क्या कर पाऊँ, एंजॉय कर पाऊँ। जो उसकी इमेजिनेशन है वो हर एक मोमेंट के साथ उसके लिए इवनिंग में एक ऐसी चीज़ लाती है कि उसको खुशी देती है। दे वुड पैडल टू अ लार्ज वाटर, अब वो क्या करता है, पैडल के लिए एक लार्ज वाटर लिली पैड लेता है अपस्ट्रीम में और उसको इनवाइट करता है हैरियत को स्टेप आउट ऑफ द पैड, कि अब वो क्या करे, पैड को स्टेप आउट करे और सिट और वहाँ पर ही बैठ जाए। स्टुअर्ट प्लान टू वियर हिज स्विमिंग ट्रंक्स, और क्या करता है, वो क्या पहन लेता है, स्विमिंग ट्रंक्स को पहन लेता है अपने क्लोथ्स के अंदर, सो दैट ही वुड डाइव, और ताकि he could dive off the lily's pad into the cool stream. He would swim the crawl stalk up and down and all around the lily pad, while Harriet watched, admiring his ability as a swimmer. Stark chewed the spruce gum very rapidly as he thought about his part of episode.
किस तरह से वो हैरियत के साथ सारी चीज़ देखता है और हैरियत उसको वॉच आउट करती है और उसको एडमायर करती है उसकी एबिलिटी को कि वो एज ए स्विमर कितना अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और साथ में स्टार्ट जो है वो किस तरह से च्यूड कर रहा है सब चीज़ों को और गम को, तो सब चीज़ों को मैनेज करते हुए वो अपनी एबिलिटी को उसने किस तरह से सब चीज़ें प्रेजेंट की है। सडनली स्टाउट ओपन हिज आइज, तो अचानक से जो स्टाउट होता है वो अपनी आइज को खोलता है और बैठ जाता है। ही थॉट अबाउट द लेटर ही हैड सेंट एंड ही वंडर्ड वेदर ही हैड एवर बीन डिलीवर्ड। इट वॉज unusually small letter. Of course he might have gone unnoticed in the letter box. तो वो देखता है, जैसे ही वो उठता है और बैठ जाता है तो देखता है कि जो लेटर है वो भेजा जा चुका है, सेंट हो चुका है, और वो बहुत ज़्यादा वंडर्ड हो जाता है इन चीज़ों को देखकर कि हैड बीन डिलीवर्ड, क्या ये डिलीवर भी हो चुका है। अनयूजुअली स्मॉल लेटर, और जैसा वो सोच रहा था कि वो लेटर कैसा होगा उससे भी बेटर क्या हो गया, वो स्मॉल लेटर के बारे में सोचता है, उन कोर्सेज के बारे में सोचता है जो अननोटिस में था कि लेटर बॉक्स के अंदर होगा। द आइडिया फिल्ड हिम द फियर्स एंड वरीज, अब जो लेटर है उसके बारे में वो क्या सोच रहा है, काफी वरी भी हो रहा है, काफी डर भी लग रहा है उसको। बट सून ही लेट हिज थॉट्स रिटर्न टू द रिवर, लेकिन जो वो सारी चीजें सोच रहा था लेटर से रिलेटेड अननोटिस थिंग्स थी, अब वो दोबारा से कहाँ पे, दोबारा से उसकी थिंकिंग कहाँ पर आ जाती है, रिवर पर, और वो वहीं पर सोचने लग जाता है। विप्रो विल बिगिन टू सिंग ऑन द अपोजिट शोर, डार्कनेस स्प्रेड ओवर द लैंड एंड स्टार्ट ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप, कि किस तरह से वहाँ पे डार्कनेस स्प्रेड, कि डार्कनेस फैल गई है, अब अंधेरा होने लग गया है और वो अपोजिट शोर के साथ में है और लैंड उसको नजर आ रही है, तो वो सब चीजें उसके दिमाग में आने लग जाती है। द नेक्स्ट डे dawned cloudy. Stout had to go to the village to have the oil changed in his car, so he hid the canoe under some leaves, tied it firmly to a stone and went off to his errand, still thinking. तो नेक्स्ट डे क्या करता है वो, क्लाउडी, ठीक है, जैसा भी जो वेदर होता है वो कैसा हो जाता है, डॉन क्लाउडी हो जाता है। अब स्टाउट क्या सोचता है कि उसको विलेज में जाना चाहिए और अपनी जो गाड़ी है उसका ऑयल भी चेंज कराना चाहिए। सो ही हिट द कैनोए, और वो क्या करता है दोबारा से कैनाए को छुपा देता है, जहाँ वो पत्ते होते हैं लीव्स से बनी होती है तो सम लीव्स के अंदर उनको छुपा देता है। टाइड इट फर्मली टू अ स्टोन, और क्या करता है उसको स्टोन्स के आसपास भी, उसके आसपास स्टोन भी डाल देता है, और वेंट अप टू द एनाल्ड, और फिर वहां से चला जाता है। स्टिल थिंकिंग अबाउट हैरियत एंड विशिंग इट वर अ नाइजर डे, द स्काई लुक रेनी। तो अब वो ये करता है कि हैरियत के बारे में सोचता है और विश करता है कि कभी ऐसा होगा कि बहुत अच्छा दिन आने वाला है और जो स्काई है वो कैसी होगी, रेनी होगी। स्टाउट रिटर्न फ्रॉम द विलेज विद अ हेडेक, बट ही होप्ड दैट इट वुड बी बेटर बिफोर 5 o'clock. He felt rather nervous as he had never taken a girl कैनोइंग बिफोर। तो स्टाउट जो है वो रिटर्न करता है विलेज में, लेकिन उसको क्या हो जाता है, हेडेक हो जाता है उस टाइम पे, है ना। तो वो क्या करता है, वो होप करता है, आशा करता है कि अब शायद बहुत अच्छा होगा बिफोर 5 o'clock, और वो साथ में थोड़ा थोड़ा नर्वस भी हो जाता है क्योंकि कभी भी किसी भी कैनोइंग के अंदर उसने किसी गर्ल को नहीं बिठाया था। ही स्पेंड द आफ्टरनून लेइंग अराउंड कैंप, trying on different shirts to see which looked best on him and combining his whiskers. अब वो क्या कर रहा है कि उसके कंबाइन करके देख रहा है कि उसकी मूंछों के साथ कौन सी शर्ट बेस्ट जाएगी, और वो ट्राई करते जा रहा है ना, क्योंकि उसने कभी, वो गर्ल्स के लिए बता रहा है कि कभी भी उसने किसी को अपनी जो बोट होती है, जो कैनोए है, उस पर नहीं बिठाया। तो उस तरह से वो क्या हो रहा है, रेडी भी हो रहा है। अब ही वुड नो सूनर गेट अ क्लीन शर्ट ऑन लॉन्गर, और उसने ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से एक क्लीन शर्ट भी नहीं पहनी है ना, तो अब वो अलग अलग ड्रेस ट्राई करके देख रहा है, लेकिन साथ में वो कैसा हो रहा है, थोड़ा नर्वस भी हो रहा है। ही वुड हैव टू चेंज इट फॉर अ ड्राई वन। ही पुट ऑन अ क्लीन शर्ट एट 2 o'clock, अनदर एंड 3 o'clock एंड अनदर द 4:15। तो ये टाइमिंग के साथ वो कैसे शर्ट को चेंज कर रहा है। दिस टुक अप मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून, और उसने ज़्यादातर आफ्टरनून हो गया उसको चेंज करते करते। एज 5 o'clock ड्रू नियर, स्टाउट ग्रू मोर एंड मोर नर्वस। जितना 5 o'clock होता जा रहा है, क्योंकि उसने 5 o'clock बोला था, तो उतना वो ज़्यादा नर्वस होता जा रहा है। ही kept looking at his watch, glancing up the path, combing his hair, talking to himself and fizzing। अब क्या हो रहा है कि वो अपने बालों को
क्या कर रहा है, कॉम कर रहा है और जो रास्ता है ग्लैंस कर रहा है, उस पर बार बार वॉच को देखता है। इस तरह से उसकी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। द डे हैड टर्न चिली एंड स्टाउट वॉज ऑलमोस्ट श्योर दैट देयर वॉज गोइंग टू बी रेन। He couldn't imagine what he could do if it should rain. Just a Harriet arms shot up to go canoeing. तो वो क्या कह रहा है, सोच रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर अब की बार बारिश होने वाली है। और वो couldn't imagine, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो बारिश में हैरियत को लेकर जाएगा। At last 5 o'clock arrived. Stuart heard someone coming down and path. It was Harriet. It had accepted his invitation. Stuart threw himself down against a stump and tried to strike an easy attitude, as though he were accustomed and talking girls out. He waited till Harriet was within a few feet of him, then got up. तो यहाँ पे उसको आवाज़ आती है 5 o'clock, कोई आ चुका है, और स्टुअर्ट सुनना ही देता है कि कोई उसको बुला रहा है। और हैरियत थी वो, ही हैड एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, और कि वो इन्विटेशन उसने उसका एक्सेप्ट कर लिया था और वह वहाँ पर आ चुकी थी पूरे इजी एटीट्यूड के साथ। और द गर्ल ही वेटेड टिल हैरियत, और वो कहाँ पे हैरियत का वेट कर रहा था विद इन अ फ्यू फीट ऑफ हिम, देन गॉट अप। हेलो देयर ही सेड ट्राइंग टू कीप हिज वॉइस देम ट्रम्बलिंग। तो क्या बोलते हैं, आपस में बात करते हैं और हेलो स्टार्ट हो जाता है, ट्राइंग टू कीप हिज वॉइस बाय ट्रम्बलिंग। तो उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। आर यू मिस्टर लिटिल, आस्क्ड हैरियत। हैरियत पूछती है, अच्छा आप मिस्टर लिटिल हैं? यस सेड स्टुअर्ट, इट्स सो नाइस ऑफ यू टू कम। तो कहते हैं कि वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। वेल इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क मी, रिप्लाइड हैरियत। तो हैरियत क्या बोलती है, उसको अच्छे से रिप्लाई करती है कि ये आपने मुझसे पूछा तो उसके लिए भी मैं आपको थैंक बोलती हूँ। शी वॉज वेयरिंग अ वाइट स्वेटर, अ ट्विड स्कर्ट, शॉर्ट वाइट वूल सॉक्स एंड sneakers. Her hair was tied with a bright colored scarf, and Stuart noticed that she carried a box of peppermints in her hand. तो देख रही है सारी की सारी चीज़ें कि क्या क्या उसने पहना हुआ है। क्या क्या पहना था उसने, वियरिंग अ वाइट स्वेटर पहना है, ट्विन स्कर्ट है, शॉर्ट वाइट वूल सॉक्स है उसकी, स्नीकर्स हैं, और उसके जो हेयर हैं वो टाइड हैं विद अ ब्राइट कलर्ड स्कार्फ के साथ। और साथ में उसने क्या नोटिस किया, उसके हाथ में क्या है, पेपरमिंट्स का एक बॉक्स भी है। नॉट एट ऑल ग्लैड टू डू इट सेड स्टुअर्ट, आई ओनली विश वी हैड बेटर वेदर, लुक्स रादर स्टिकी, don't you think? Stout was trying to make his voice sound as though he had an English accent. तो यहाँ पे बात करते हैं कि वो कहते हैं कि no, not at all, glad to do, said Stout। क्या बोलता है कि not at all, कि glad to do it, I only wish, मैं क्या विश करता हूँ, had better weather, कि जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए ताकि वो स्टिकी ना हो। don't you think, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? Stout was trying to make his voice sound, तो अब वो क्या बोलने की, बात करने की उसके साथ कोशिश कर रहा है इन एंशियंट इंग्लिश एक्सेंट में। हैरियत लुक्ड एट द स्काई एंड नोडेड, ओ वेल शी सेड, इफ़ इट रेन इट रेन्स। तो क्या हैरियत बोलती है, स्काई को देखती है और गर्दन भी धीरे धीरे हिलाती है और बोलती है हाँ अगर बारिश होती है तो हो जाए। श्योर रिपीटेड स्टुअर्ट, इफ़ इट रेन्स इट रेन्स। तो वो भी उसी तरह उसकी जो आवाज़ है उसको वैसे इमिटेट करता है। My canoe is a short distance up at the shore. May I help you over the rough places in the path? Stuart was a courteous mouse by nature, but Harriet said that he didn't need any help. She was an active girl and not at all inclined to stumble or fall. Stuart led the way to where he had hidden the canoe, and Harriet followed. But when they reached the spot, Stuart was horrified to discover that the canoe was not there. It had disappeared. तो अब वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। अब उसको क्या लेके जाता है, उसको हैरियत को वहाँ पे लेके जाता है। और जो हैरियत है वो काफ़ी एक्टिव गर्ल है और उसको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी एक्टिव गर्ल है और इस तरह से वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती। लेकिन जैसे ही वो उसको दिखाता है आगे भाग के, कैसे शो करता है कि हमारी कैनोए कहाँ पर है, तो हैरियत भी उसके पीछे आती है। तो जहाँ पे उसने उसको छुपाया हुआ था तो वो देखकर उस जगह को जब देखता है काफ़ी हॉरिफाइड हो जाता है कि जो कैनोए है जहाँ पर उसने छिपाया था, उसको रखा था, अब वो वहाँ पर नहीं है। स्टुअर्ट्स
heart sank. He felt like crying. The canoe is gone. He groaned. अब जो स्टाउट है वो क्या होता है, जैसे उसको बहुत बुरा लगता है और सिर्फ वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे उसको अभी रोना आ गया है ना। तो कैनोए वहाँ से नहीं है और कैनोए कहाँ पर चली गई है। देन ही बिगेन रेसिंग वाइल्डली अप एंड डाउन द बैंक लुकिंग एवरीवेयर. हैरियट जॉइंड इन द सर्च. आफ्टर अ while they found a canoe, but it was a mess. Someone had been playing with it. A long piece of heavy string was tied to one end. The ballast rock was gone. The pillow was gone. The backrest was gone. The spruce gum had come out the seam. But mud was all over everything, and one of the pedals was all bent and twisted. It looked just the way birch bark canoe looks after some big boys are finished playing with it. अब वो वहाँ पे क्या देख रहे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं कि उनकी कैनोए मिल जाए. हैरियत भी उसके साथ साथ ज्वाइन कर रही है, वो भी ढूंढ रही है और इधर उधर सर्चिंग प्लेस के टाइम उनको क्या मिलता है, लॉन्ग पीस ऑफ हैवी स्ट्रिंग वॉज टाइड इनटू वन एंड. तो देखती है कि किस तरह से उनको सिर्फ स्ट्रिंग नज़र आती है, जो रोक्स है, जो बॉलेस्ट रॉक्स थी वो भी वहाँ पर नहीं है, जो पिलो है वो भी चले गए हैं, जो बैक रेस्ट उसने लगाई थी वो भी नहीं है और उसको क्या नज़र आता है, सिर्फ वहाँ पर मिट्टी मिट्टी नज़र आती है हर जगह पर. और जो पैडल्स उसने बनाए थे किससे, आइसक्रीम स्टिक से, वो भी ट्विस्ट हो चुके हैं, बैंड हो चुके हैं. तो ये सारी सिचुएशन देखकर उनको लगता है कि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है. स्टाउट वॉज हार्ट ब्रोकन. अब जो स्टाउट का दिल बिल्कुल टूट चुका था. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. ही सेट डाउन ऑन अ ट्विंग एंड buried his head in his hands. Oh Gee, he kept saying, oh Gee whiz, what's the trouble? asked Harriet. अब वो स्टाउट क्या होता है, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है और कैसे अपने जो हाथ हैं वो अपने सर पर रख लेता है और उसको बड़ा दुख फील हो रहा होता है और वो बहुत परेशान हो जाता है. लेकिन फिर हरियत पूछती है कि क्या हुआ, क्या परेशानी है. मिस एमएस said Stuart, the trembling voice, I assure you I had arranged everything beautifully, everything, and now look. तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने सब चीज़ों को कितना अच्छे से अरेंज किया था और अब सब चीज़ें खराब हो चुकी हैं. एवरीथिंग लुक नाउ, और देखो सब चीज़ें ख़त्म है. हैरियट वॉज for fixing the canoe up and going out on the river anyway. But Stout couldn't stand that idea. It no use, he said bitterly. He wouldn't be the same as what? asked Harriet. अब हरियत क्या करती है, वो क्या कर रही थी, फिक्सिंग कर रही थी कैनोए को फिक्सिंग अप करने की कोशिश कर रही थी कि जो उसकी चीज़ें हैं उनको लाकर और फिक्स कर रही थी कि ये जो है सब चीज़ों को फिक्स करके. लेकिन जो स्टाउट था वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था और कहता है इनका कोई यूज़ नहीं है. और क्या बोलता है, ही सेड बिटरली, इट्स नो यूज़, इट वुडंट बी द सेम एज व्हाट. तो फिर इस तरह से वो बोलती है कि क्या सेम का मतलब क्या हुआ, आज हरियत. The same as the way it was going to be. When I was thinking about it yesterday, I'm afraid a woman can't understand these things. Look at this string. It's tied on so tight, I could never get it off. तो वो बात करता है कि जो सेम थिंग थी और जो चीज़ें थी उस तरह का कैसे मैनेज करे. आई वॉज थिंकिंग, मैं ये कल ही सोच रहा था. वो अपनी बातें बताता है कि मैं ये चीज़ें कल सोच रहा था कि आई एम अफ्रेड था किस चीज़ के लिए, कि जो वुमेन है कांट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकती. और वो देखिए अभी वो क्या शो कर रहा है, उनको स्ट्रिंग्स को शो कर रहा है कि किस तरह से वो दोबारा से नहीं हो सकती, उनको रिकवर नहीं किया जा सकता. वेल सजेस्टेड हरियत. तो वो क्या कहती है, हरियत सजेस्ट करती है, ओके, कुडंट बी जस्ट लेट इट हैंग ओवर अ वाटर एंड ट्रेल अलोंग आफ्टर अस. स्टुअर्ट लुक्ड एट हर डिसअपियर. डिड यू एवर सी एन इंडियन पैडलिंग अलोंग सम क्वाइट unspoiled river with a great big piece of rope dragging astern, he asked. तो किस तरह से वो स्टाउट को बताती है और उसको दिखाती है कि कभी तुमने देखा है इंडियन पैडलिंग को, कि अलोंग किसके साथ लगी होती है, वो अनस्पॉइल्ड रिवर्स के साथ. कैसे ग्रेट, उसके अंदर कैसे पीसेस होते हैं, ग्रेट बिग पीस ऑफ रॉप, उसके साथ वो ड्रैग करके लाई जाती है.
We would pretended we were fishing, said Harriet. We didn't realize that some people are busy about boats. I don't want to pretend I am fishing, cried Stout desperately. Besides, look at mud, look at it. It was screaming now. तो वो किस तरह से वो बार बार चिल्लाता है उस पर कि I don't want to pretend I am finishing. तो वो क्या कह रहा है कि मैं किसी भी फिशिंग वगैरह को प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ. इस तरह से स्टाउट जो है वो चिल्लाता है बार बार और बोलता है कि इन चीज़ों को देखो, मड, लुक एट इट, और वो स्क्रीम करता रहता है. Harriet sat down on the twig beside Stout. She offered him a peppermint, but he shook his head. अब वो क्या करती है, हैरियत आराम से बैठ जाती है और उसको जो पेपरमिंट अपने साथ लाई थी वो उसको ऑफर करती है. Well, she said, it's starting to rain and I guess I'd better be running along if you are not going to take me paddling if you are canoe. तो बताती है कि कैनोय के अंदर अगर हम पैडलिंग नहीं कर सकते तो लगता है कि बारिश स्टार्ट हो गई है. इट्स रेनिंग, और बारिश भी शुरू हो चुकी थी. तो आई कुडेंट सी वाई यू हैव टू सिट हेयर एंड सर्क. तो वो कहती है क्यों ना हम यहाँ पर बैठें और बारिश का मज़ा लें. वुड यू लाइक टू कम अप टू माई हाउस. तो तुम मेरे घर आ जाओ. आफ्टर डिनर वी कुड टेक मी द डांस एट द कंट्री क्लब. इट माइट चीयर यू अप. तो कहती है कि आप मेरे घर आओ और फिर हम क्या करते हैं, डांस के लिए चलेंगे कंट्री क्लब में, और वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत खुशनुमा होगा, चीयरफुल होगा. नो थैंक यू, रिप्लाइड स्टाउट. स्टाउट तो वैसे ही परेशान था. वो कहता है नो थैंक यू, आई डोंट नो हाउ टू डांस. मुझे ये नहीं पता कि डांस कैसे होता है, मैं नहीं जानता. बिसाइड्स आई प्लान टू मेक एन अर्ली स्टार्ट इन द मॉर्निंग. आई विल प्रोबेबली बी ऑन द रोड एट डे ब्रेक. तो किस तरह से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि बिसाइड्स आप प्लान करते हैं और चलते हैं, और ये चीज़ें क्या होंगी, स्टार्ट इन द मॉर्निंग, आई विल प्रोबेबली, और शायद हम थोड़ा बहुत कुछ इंजॉय कर पाएंगे डे ब्रेक के अंदर. आर यू गोइंग टू स्लीप आउट एंड ऑल दिस रेन, आज हरियत. हरियत बोलती है कि क्या तुम अभी सोने जा रहे हो. सर्टेनली, सेड स्टुअर्ट, आई विल क्रॉल इन द अंडर द कैनोय. तो कह रहे हैं हाँ, मैं कैनोय के अंदर ही क्रॉल करूंगा वहीं पर. हैरियत struggled her shoulders. Well, she said, goodbye Mr. Little. तो हैरियत क्या करती है, थोड़ा मुस्कुरा देती है और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलती है ओके, गुड बाय मिस्टर लिटिल. गुड बाय मिस एमएस, सेड स्टाउट. आई एम सॉरी आवर इवनिंग ऑन द रिवर हैड टू एंड लाइक दिस. तो किस तरह से वो जो स्टाउट होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उसको सॉरी बोलता है कि हमारी इवनिंग कैसे डिस्ट्रॉय हो गई और किस तरह से हमने प्लानिंग की थी रिवर में जाने की और रिवर के साथ कैनोए के साथ, लेकिन वो सारी प्लानिंग हमारी डिस्ट्रॉय होगी. सो एम आई, सेड हरियत, एंड शी वॉक्ड अवे अलॉन्ग द वेट पाथ टूवर्ड्स Tracy's Lane, leaving Stouts alone with his broken dreams and this damaged canoe. तो इस तरह से जो हैरियत है वो थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन दोबारा से उसका मूड भी अच्छा हो गया और वो कैसे करती है, वो चली जाती है. She walked away along the wet path, और अपने गीले पैरों से धीरे धीरे करके वो वहाँ से चली जाती है. लिविंग स्टाउट अलोन, और जो स्टाउट है वो वहाँ पर अकेला रह जाता है. विद ब्रोकन ड्रीम, जो उसने सोचा था, वो जो उसका ड्रीम था वो अब टूट चुका था, डैमेज्ड हो चुका था. लेकिन कोई नहीं है ना, लेकिन उसने कोशिश की और जिस तरह से उसकी धीरे धीरे उन जो चीज़ों को उसने संवारा और किस तरह से जो चीज़ें उसने की, लेकिन कोई बात नहीं, सक्सेस अनसक्सेस होती रहती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोशिश करना ही बड़ी चीज़ होती है. तो इसको दोबारा से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.